Kindly turn with me to 2 Corinthians chapter 13. मेरे साथ दूसरे कुरिन्थियों की किताब बाब नंबर 13 मेरे साथ देखें। 2 Corinthians chapter 13. We read verse 11 altogether. दूसरा कुरिन्थियों की किताब 13वां आयत और बाब नंबर 11 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। गरज ए भाइयों, Finally, खुश brethren, रहो, farewell, be perfect, be the good comfort, and be of one mind, live in peace, and the God of love and peace shall be with you all. No? गरज ए भाइयों, खुश रहो, कामिल बनो, खातिर जमा रखो, एक दिल रहो, मेल मिलाप रखो, तो खुदा मोहब्बत और मेल मिलाप का चश्मा तुम्हारे साथ होगा। Shall we pray? दुआ करेंगे। Our living, loving Father, we thank you and praise you for the loving kindness and tender mercies towards us. Thank you for helping us in worshipping thee. Lord, we thank you for the provision made in your house to take part in the table. Before we approach the table with all reverence and fear, we come around the word, speak to us, minister the word unto us. Thank you for the portion of the scriptures just now we read. Heavenly Father, prepare all of us to take part in the table worthily. May the Holy Spirit help us. Pray thanksgiving, the precious, matchless name of Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Apostle Paul, after writing these two epistles, concluding to the Corinthians, he says in verse 11, finally, brethren, farewell, be perfect and be of good comfort. पौलुस रसूल जो ये दो खत लिखते हैं, इन दोनों के खात्मे में ये लिखते हैं कि गरज ए भाइयों, खुश रहो, कामिल बनो, खातिर जमा रखो। Yeah. So let us meditate a few words in these verses. In this verse. इस आयत में से चंद बातें हम आज मुताला करेंगे। Yeah. First we see be perfect. पहली बात यह है कि कामिल बनो। Yeah. Perfection is expected by God in our lives. हमारी जिंदगियों में खुदा ये चाहता है कि हम कामिल बने। Yeah. His desire is that we ought to go towards perfection day by day. उसकी चाहत यह है कि दिन ब दिन हम कामिल बनते जाएं। Yeah. Many times we think that we are perfect in our lives. बहुत सारी बार हम ये सोचते हैं कि हम हमारी जिंदगियों में कामिल बन चुके हैं। Yeah. So instead of looking into the Lord and we look into others and we say that I am better than others. कभी कभी हम क्या करते हैं, दूसरों पर नजर डालते हैं और दूसरों से अपनी बराबरी देखते हैं और कहते हैं कि हम उनसे दूसरों से बेहतर हैं। Yeah, we have to look into our Lord who is altogether perfect. लेकिन हमें तो हमारे खुदावंद यीशुआ पर नजर करनी है जो कामिल है, बिल्कुल कामिल है। Yeah, in book of Deuteronomy chapter 18 verse 13 हम पढ़ेंगे इस्तिस्ना की किताब में बाब नंबर 18 और आयत नंबर 13 में। Yeah, thou shalt be perfect with the Lord thy God. इस्तिस्ना की किताब 18 की 13 में लिखा हुआ है, तुम यहोवा अपने खुदा के हुजूर कामिल रहना। Yeah, in Matthew's Gospel chapter 5 मत्ती की खुशखबरी बाब नंबर 5 में and verse 48 और वर्स नंबर 48 में the Lord he says, be therefore perfect even as your Father which is in heaven is perfect. यहाँ पे खुदावंद यीशुआ कहते हैं, बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसे तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। Yeah, so very clearly he says, and be perfect as your Father which is in heaven is perfect. हमारे खुदावंद यीशुआ ने खुद कहा कि तुम कामिल बनो जैसे तुम्हारे आसमानी बाप कामिल है। So our Father who is in heaven is altogether perfect. तो हमारे आसमानी बाप जो आसमान में है वो बिल्कुल कामिल है। Yeah, we his children purchased by the blood of his dear son Jesus Christ, we also ought to be perfect in all manner of our lives. हम तो हमारे खुदा के फर्जंद हैं, हमारे खुदा ने अपने इकलौते बेटे यीशुआ के खून में हमें मोल लिया है और इसीलिए वो चाहता है कि हम भी उसकी तरह कामिल बने। Yeah, our flesh and the Satan enemy, the world, they are working against us and not going towards perfection. हमारा जिस्म जो है और सातान जो है और इस दुनिया जो है, ये चीजें हमारी मुखालिफत करते हुए हमारे मुखालिफ बन जाते हैं और हमें रोकते हैं कि हम कामिल ना बने। Yeah, so the Lord he says very clearly, be thou perfect
as your heavenly, our Father which is in heaven is perfect. इसीलिए खुदावंद यहोवा कहते हैं कि तुम भी कामिल बन जाओ जैसे तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। In the life of in Abraham, we Ab- find that he was not perfect certain time. अगर हम अब्राहम की जिंदगी पर नजर डालेंगे तो हम देखते हैं कि कभी कभार वो कामिल नहीं पाया गया था। Yeah, Genesis chapter 17. हम देखते हैं पैदाइश की किताब बाब नंबर 17। And here the Lord, God of heaven, he speaks to Abraham and Yeah. say, "Be thou perfect." यहाँ पे आसमान का खुदा जो है यहोवा खुदा अब्राहम को दिखाई देता है और कहता है कि तू मेरे सामने कामिल बन। Yeah, 17:1. 17 की 1। And when Abraham was 90 years old and 9, and the Lord appeared to Abraham and said unto him, I am the Almighty God, walk before me and be thou perfect. जब अब्राहम 99 बरस का हुआ तब यहोवा अब्राहम को नजर आया और उसे कहा, मैं खुदा कादिर हूँ, तू मेरे हुजूर में चल और कामिल हो। Yeah, so there was some imperfection in the life of Abraham. क्योंकि अब्राहम की जिंदगी में भी कई नुक्स थे। And Abraham, he took Hagar and Ishmael was born. और अब्राहम ने क्या किया था, इस्माइल हागार को लिया था और इश्माएल पैदा हुआ था। Yeah, the Lord says, I am the Almighty God. खुदा कहता है मैं खुदा कादिर हूँ। Yeah, what I promise I will do it. जो मैंने वादा किया है उसे मैं जरूर निभाऊंगा। Yeah, God has promised that your seed will be like the stars of the sky and the sand of the sea and the dust of the earth. खुदा ने कहा था अब्राहम से कि तेरी नस्ल से मैं तेरी नस्ल को मैं ऐसा बनाऊंगा कि तेरी नस्ल जमीन के रेत की मानिंद और आसमान के सितारों की मानिंद बेशुमार होंगे। Yeah, but now Sarah's advice has become a failure in the life of Abraham. लेकिन सारा ने क्या किया था, बांझ थी, इसीलिए अब्राहम ने सोचा कि ये वादा जो है ये मुमकिन नहीं है। Yeah, Abraham should have asked God, and Sarah says like this, shall I get Hagar into my life? तब अब्राहम को पूछना चाहिए था खुदा से कि मेरी बीवी सारा ये कह रही है कि मैं हाजरा को लूं, क्या मैं ऐसा करूं या ना। Yeah, but he didn't do it. लेकिन उसने खुदा से पूछा नहीं था। So Abraham failed here because not depend on God for the advice which his wife gave. हम इस तरीके से देखते हैं कि अब्राहम नाकामिल हुआ क्योंकि उसने खुदा से पूछा नहीं था लेकिन अपनी बीवी की सलाह पर चला। Yeah, if you want to live a perfect life upon this earth, not to heed the counsel of any persons, even our own wives, but we look unto God and say, know His mind. तो हमें भी इस दुनिया में खुदा का दिल या उसकी सोच क्या है उसे अपनाना है, ना कि अपनी मर्जी पर चलना है। And Adam also he failed. आदम को भी अगर हम देखेंगे तो वो भी नाकामिल बना। Yeah, when Eve was deceived and Eve gave the fruit to Adam, Adam immediately he took it and he didn't ask, shall I eat this fruit to the Lord? जब खवा आजमाइश में पड़ गई थी और सांप की बातों को मानकर खवा ने फल लिया था और आदम को भी दिया था, और तब आदम को पूछना चाहिए था खुदा से कि ए मेरे खुदा ये मैं खाऊं या ना खाऊं। Yeah, but you find immediately he took the fruit and thus God was not happy. लेकिन उसने फिलफौर उस फल को खा लिया था और इस वजह से खुदा नाखुश हुआ। Yeah, so we must be very careful to go towards perfection. We must always depend on God in everything. तो इसीलिए हमें कामिल बनने के लिए हमेशा मुस्तैद रहना है और इस वास्ते खुदा पर हमें इन्हिसार करते रहना चाहिए। So our God is Almighty God. तो हमारा खुदा कादिर है, able to do anything, everything what He promised for us in His own time. हमारी जिंदगियों में जो कुछ उसने वादा किया है उन वादों को वो अपने वक्त में ऐन वक्त में निभाएगा। Yeah, He says, walk before me and be thou perfect. वो कहता है अब्राहम से मेरे सामने तू चल और कामिल रह। So we must go towards perfection. That must be our desire, that our
God in heaven is perfect, and we must depend on Him, and He will do great things for us. और हमें भी कामिल रहना है, ये हमारी चाहत होनी चाहिए, क्योंकि हमारे आसमानी बाप कामिल है। और इस तरीके से कामिल होने के लिए हमारे खुदा पर हमें मुनहसिर Yeah. होना चाहिए। Yeah, by God says about Noah and also about Job, they were perfect in their lives. और नोवाह और योब की जिंदगियां अगर हम देखेंगे तो खुदा कहता है अपने कलाम में कि वो भी खुदा के सामने कामिल बनने के लिए बुलाए गए। So we also must go towards perfection by depending on God for everything. इसीलिए हमें भी हर चीज के लिए खुदा पर मुनहसिर होते हुए कामिल बनने के लिए आगे बढ़ना है। Yeah, we read in the book of Revelation chapter 3 हम पढ़ते हैं मुकाशिफा की किताब बाब नंबर 3, about Sardis, वहां the पे church at Sardis. सरदीस की एकलीसिया के बारे में हम पढ़ते हैं। Yeah, so here verse 2, आयत नंबर 2, be watchful and strengthen the things which remain that are ready to die, for I have not found the works perfect before God. जागते रह और उन चीजों को जो बाकी हैं और जो मिटने को थीं मजबूत कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नजदीक पूरा नहीं पाया। Yeah, so our life must be found perfect before God. तो हम देखते हैं कलाम बताता है कि हमारी जिंदगियां खुदा की निस्बत खुदा की हुजूरी में कामिल बननी हैं। So Sardis, the church, it is having a name that living but are dead. यहाँ पे लिखा हुआ है कि सरदीस की एकलीसिया का एक नाम है कि वो लोग जिंदा हैं, लेकिन हकीकत में वो लोग मुर्दा हैं। In book of Revelation chapter 3 verse 2, the Lord says, be watchful and strengthen the things which remain that are ready to die. तो यहाँ पे खुदावंद ये कहते हैं कि जो काम तू करना चाहता है लेकिन कामिल नहीं है, उनको मजबूत कर। Yeah, I have not found the works perfect before me. उसने कहा कि तेरे किसी काम को अपने खुदा के नजदीक मैं पूरा नहीं पाया। So as believers, day by day, we must stand before God and examine our life, whether my life is a living life or a dead life. इसी वास्ते हमें क्या करना चाहिए, खुदा के सामने हर दिन आना चाहिए और अपने आप को परखना चाहिए और जांचना चाहिए और जानना चाहिए कि मेरी जिंदगी जो है ये जीता हुआ जिंदगी जैसा है खुदा के सामने या मुर्दा हूँ। It's very important. ये बहुत अहम बात होती है। Yeah, many times we see things outside and we compare ourselves with other brothers or sisters, then we get deceived, and instead of going towards perfection, and we go down and down to imperfection. हमारी जिंदगियों में हम क्या करते हैं, हमारे आजू बाजू के लोगों से या हमारे बाकी भाई बहनों से हम अपने आप को कंपेयर करते हैं, उनके मुकाबले में मैं कैसा हूं करके कंपेयर करेंगे, और खुदा को देखकर कामिल होने की जगह हम क्या करते हैं, नीचे चले जाते रहते हैं, कामिल नहीं बनते। Yeah, so we believers always make sure we must look unto the Lord. इसीलिए हम यीशु मोमिन जो होते हैं, हमें हमेशा खुदावंद यीशु पर नजर डालनी है। Yeah, book of Hebrew chapter 6 verse 1. इब्रानियों की किताब बाब नंबर 6 और आयत नंबर 1। Book of Hebrews chapter 6 verse 1. इब्रानियों की किताब बाब नंबर 6 और आयत नंबर 1। बस आओ मसीह की तालीम की इब्तिदाई बातें छोड़कर कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं। Yeah, let us go unto perfection. कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं। Yeah, not repeated the things, the foundations again, but you must go towards perfection day by day in our lives. बार बार इब्तिदाई बातें ही बताना नहीं है, लेकिन दिन ब दिन हमें कामिल होने के लिए आगे बढ़ते जाना है। Yeah, it's God's desire is that we must come unto the fullness, measure and stature of His Son Jesus Christ. इसीलिए खुदावंद की मर्जी और चाहत ये है कि हमारे खुदा की मर्जी है कि हम हमारे खुदावंद यीशु के कद तक कामिल होते जाएं। Yeah, Jesus Christ, when He came to this earth, left all His glory, put the human body
and there was no sin in him. हमारे खुदावंद यीशु इस दुनिया में आए और इंसानी जिस्म में पैदा हुए, लेकिन खुदावंद यीशु में गुनाह ही नहीं था। Yeah, in John's Gospel, chapter 8, we are told Jesus asked everyone around them, "Okay, which of you convinceth me of sin?" यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 8 में हम देखते हैं कि हमारे खुदावंद अपने इर्द गिर्द रहने वाले सभी लोगों से एक सवाल कहते हैं कि आप में से कौन मुझ में गुनाह दिखा सकता है। Yeah, John 8, verse 46. यूहन्ना की खुशखबरी चैप्टर 8 और वर्स 46, Hmm. तुम में कौन मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है। Yeah. So no one was there to point out any sin in him. तो उनके इर्द गिर्द जो लोग थे उनमें से कोई एक भी ऐसा शख्स नहीं था जो आकर गुनाह उनमें कायम कर सका। What a wonderful Lord. He lived a testimonial life upon this earth that we should follow. हमारे खुदावंद कितने अजीम है ना कि वो खुदावंद यीशुआ ने अपने लोगों के दरमियान ऐसी जिंदगी जी थी के लोग उनमें गुनाह ही नहीं पाया और हमारे लिए उनके नक्शे कदम अजीम बन गए। But many times, sadly, we look on others and thus we go away from this perfect life. लेकिन बहुत गमगीनी की बात यह है कि हम दूसरों की तरफ देखते हैं और खुदावंद यीशुआ पर नजर नहीं डालते और खुदावंद यीशुआ से दूर हो जाते हैं। Yeah. So we see others and their imperfection we follow in our lives, and thus we go away from the Lord and come short of the glory of God. हाँ, इसी तरह से हम दूसरों की जिंदगियां देखते हैं जो नाकामिल हैं और खुदावंद से दूर हो जाते हैं और उस कामिल मकाम तक नहीं पहुंच सकते जो खुदावंद चाहते हैं। In Hebrew chapter 12 verse 2, इब्रानी की किताब बाब नंबर 12 और आयत नंबर 2, yeah, we are told, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. इब्रानी की किताब बाब नंबर 12 और आयत नंबर 2 में हम पढ़ते हैं, खुदावंद यीशुआ को तकते हुए आगे बढ़ना है जो हमारे ईमान के बानी और कामिल बनाने वाले हैं। Looking unto Jesus, खुदावंद यीशुआ को तकते रहना, then we can go from perfection to perfection. तब हम कामिल बनते हुए जाएंगे। Then one day we will be like the Lord as he is in his glory. और इस तरीके से हम एक दिन खुदावंद यीशुआ की तरह बन जाएंगे, उसके जलाल में, उनके जलाल में पहुंचेंगे। What's our hope? हमारी उम्मीद क्या है? The Lord is going to come again. ये है हमारी उम्मीद कि हमारे खुदावंद यीशुआ फिर से वापस आने वाले हैं। Yeah, when he comes again, और जब वो वापस आएंगे and he will transform us unto his fullness measure. तब खुदावंद यीशुआ हमें तब्दील करेंगे और अपने कामिल कद तक हमें पहुंचा देंगे। Yeah, 1 John chapter 3 पहला यूहन्ना बाब नंबर 3 and verse 2. और आयत नंबर 2। Yeah, beloved, now we are the sons of God, and it not yet appear what we shall be. But we know that when he shall appear, we shall be like him, for we see him as he is. अजीजों, हम इस वक्त खुदा के फर्जंद हैं और अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसकी मानिंद होंगे, क्योंकि उसको वैसे ही देखेंगे जैसा वो है। Yeah, we shall be like him as he is. हमारे खुदावंद जैसे हैं वैसे ही हम उन्हें देखेंगे। Yeah, outwardly we will be like him, but internally now opportunity for us to transform unto his fullness. बाहरी तरीके से या जाहिरी तरीके से हम तो ऐसा ही रहेंगे, लेकिन अंदरूनी तरीके से, रूहानी तरीके से खुदावंद यीशुआ की तरफ बन जाएंगे। Yeah, book of Colossians chapter 3 कोलोसियों की किताब बाब नंबर 3 and verse 4. और आयत नंबर 4। Yeah, when Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. जब माशियख जो हमारी जिंदगी है जाहिर किया जाएगा तो तुम भी उसके साथ जलाल में जाहिर किए जाओगे। Yeah. Oh, we shall be like him in his glory. हमारे खुदावंद यीशुआ की तरह हम बनेंगे उसकी जलाल में। Yeah, that is the ultimate perfection. वो होता है बिल्कुल कामिल बनने की हालत। Yeah, in the Corinthian church there were problems and so many things. Personally they lost testimony and all these things Apostle Paul he has exhorted.
कुरिन्थियों के एक्लीसिया में हम देखते हैं कि बहुत सारी तकलीफें, मुसीबतें उनको होती थीं और पौलुस रसूल अपने कलाम में लिखते हैं, किताब में लिखते हैं कि ये बातें अच्छी नहीं हैं। Yeah, so in the both the epistles he mentions certain things about perfection and how we have to go in the Lord. इसीलिए अपने दोनों रिसालों में वो लिखते हैं कि हमें कामिल बनना चाहिए और खुदावंद यीशुआ की तरह बनते जाना चाहिए। Yeah, First Corinthians पहले कुरिन्थियों की किताब and chapter 3. और बाब नंबर 3। And here we are told that how we have to live a life which is pleasing unto Him, not to defile our body. यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम खुदा के लिए पसंदीदा जिंदगियां कैसे जिएं और अपने जिस्म को नापाक कैसे नहीं बनाएं। Yeah, verse 16. 13 Chapter 3, verse 16. First Corinthians. तीसरा बाब और 16वीं आयत। Yeah. Know ye not that ye are the temple of God, that the Spirit of God dwelleth in you? क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदिस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? If any man defile the temple of God, and him that shall destroy, that the temple of God is holy, which temple ye are. अगर कोई खुदा के मकदिस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मकदिस पाक है और वो तुम हो। So our body has become the dwelling place of God. तो हमारा बदन क्या हुआ है? ये खुदा का मकदिस बना है। So we have to keep this body holy as He is holy. इसीलिए हमारे बदन को हमें पाक रखना चाहिए जैसे वो पाक है। This body is purchased by the precious blood of Jesus Christ unto Him. ये बदन जो है इसे खुदावंद यीशुआ ने अपने वास्ते खरीद लिया है। Yeah, verse chapter 6, verse 20. First Corinthians. पहले कुरिन्थियों की किताब बाब नंबर 6। And for ye bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, and which are God's. 20वीं आयत, क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। So we are bought with a price. तो हम कीमत से खरीदे गए हैं। So our body doesn't belong to us, it belongs to God. इसीलिए हमारा ये बदन जो है हमारा नहीं है, खुदा का है। And chapter 7, verse 23. और 7वां बाब और आयत नंबर 23। You are bought with a price, be not ye the servants of men. तुम कीमत से खरीदे गए हो, आदमियों के गुलाम ना बनो। When we understand that we belong to God and we will keep our body holy, and thus you are going towards perfection. जैसे ही हम समझते हैं कि हम कीमत से खरीदे गए हैं, तो हम अपने बदन को पाक रखेंगे और हम कामिल इस तरीके से बनते जाएंगे। Yeah, in order to overcome the enemy, God has given us victory which He has won on the cross of Calvary. हमें कामिल बनाने के लिए खुदावंद यीशुआ ने क्या किया? उस गलबे को या जीत को हमें दिया है जो उसने सलीब पर हमारे वास्ते हासिल किया है। Let's see chapter 2 of 2 Corinthians verse 14. देखें 2 Corinthians chapter 2 verse 14। And now thanks be God, which always causeth to triumph in Christ, and maketh manifest the savor of His knowledge by us in every place. मगर खुदा का शुक्र है जो माशियख में हमको हमेशा असीरों की तरह गश्त कराता है और अपने इल्म की खुशबू हमारे वसीले से हर जगह फैलाता है। Yeah, God has always causeth to triumph in Christ. हमें खुदा क्या करता है? वो खुदावंद यीशुआ में हमेशा हमें जीत दिलाता है। Yeah, what a wonderful thing. क्या कि कितनी ही अच्छी, बहुत अजीम बात है ना। Yeah, victory over everything in our lives. हमारी जिंदगी में सब कुछ पर गलबा खुदा देता है। The worship time we have seen, and God has helped David. He has defeated all his enemies and brought him out. इबादत के वक्त हमने देखा था कि खुदा ने दावीद को इतनी ताकत दी कि उसने अपने सारे मुखालिफों पर जीत पाकर वो गलबा हासिल किया था। Go closer unto God and live nearer to Him and obey Him. Then we find victory in our lives. खुदा के नजदीक जाना, उसके करीब जीते रहना, तब ही हम अपनी जिंदगियों में जीत या गलबा देखते जाएंगे। Chapter 10, 2 Corinthians, verse 3 and 4. दूसरे कुरिन्थियों की किताब बाब नंबर 10 और आयतें 3 और 4। Yeah, for though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God, pulling down the strongholds.
क्योंकि हम अगरचे जिस्म में जिंदगी गुजारते हैं मगर जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं, इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नजदीक किलों को ढा देने के काबिल हैं। So God has given us a weapon, and through that weapon, that we have to overcome the enemy. तो खुदा ने हमें हथियार दिया है और इस हथियार से हम हमारे मुखालिफ पर गलबा हासिल करेंगे। Not with the carnal weapons of this world. इस दुनिया के जिस्मानी हथियार खुदा ने हमें पकड़ने के लिए नहीं कहा। He has given His word. खुदा ने एक हथियार दिया, वो हथियार है खुदा का कलाम। He has given the prayer. और दुआ एक हथियार है। He has given us a praise unto Him. और उसकी ताजीम करना, खुदा की हम्दो सना करना, वो एक हथियार है। He has given us the efficacy of the blood. खुदावंद यीशुआ के खून में जो खासियत है, जो कुदरत है, वो है। He has given us the power of resurrection. और फिर से मुर्दों में से जी उठने में जो कुदरत है, वो एक हथियार है। These are all spiritual things which brings victory over the enemy. ये है रूहानी हथियार जो हमारे मुखालिफ पर, हमारे दुश्मन पर हमें गलबा हासिल दिलाती हैं। When we come short of these spiritual weapons, we cannot overcome the enemy. We will be defeated. Imperfection in our lives. अगर हम इन रूहानी हथियारों को नहीं पकड़ेंगे, नहीं अपनाएंगे, तो हम गलबा हासिल नहीं कर सकेंगे और हमारी जिंदगी में हम नाकामिल बन जाएंगे। When we are defeated, there is no perfection in our lives. और जब हम दुश्मन के सामने गिर जाएंगे तो हमारी जिंदगी में कामिल नहीं बन पाएंगे। Many people spiritually and it seems to be all right, but internally they are defeated. बहुत सारे लोग आजकल ऐसे हैं कि बाहर देखने के लिए तो बहुत अच्छे रूहानी इंसान जैसे दिखते हैं, लेकिन अंदरूनी जिंदगी में वो लोग हारे हुए हैं। So my dear brothers and sisters, तो मेरे प्यारे अजीज भाई बहनों, are you going towards perfection? क्या आप कामिल होने के लिए आगे बढ़ रहे हैं? If you do you have the desire to go towards perfection? क्या आपके अंदर ये चाहत है कि मैं कामिल बनना चाहता हूँ? Or you entertain complacency is enough and this much I am doing is enough? You are living like that? या आप जो कुछ मैं अब तक करते आया खुदा के लिए इतना काफी है करके लापरवाही की जिंदगी में आप रह रहे हैं क्या? We should not be like that. हमें ऐसा नहीं रहना चाहिए। We must go towards perfection, bringing ourselves under the subjection of Christ. हमें कामिल बनने के लिए जाते रहना, आगे बढ़ते रहना है। इस वास्ते, इसके लिए हमें खुदावंद यीशुआ के कलाम के मातहत रहना है। We must look unto Him. खुदावंद यीशुआ को तकते रहना है। Then one day we will be like Him as He is. तभी हम एक दिन खुदावंद यीशुआ की तरह बन जाएंगे, जैसे वो हैं वैसे हम बनेंगे। Then 2 Corinthians, you come back to 2 Corinthians chapter 13. और फिर हम दूसरे कुरिन्थियों की किताब बाब नंबर 13 देखेंगे। And we are told the second thing, be of good comfort. यहाँ पे हमें और एक बात बताई गई है और वो बात यह है कि तुम खातिर जमा रखो। Be perfect, he said. Then again he says, be of good comfort. पहली बात यह है कि कामिल बनो, दूसरी बात खातिर जमा रखो। God has given us salvation. खुदा ने हमें नजात दी है। So Jesus, in order to give us salvation, our Lord Jesus Christ willingly went to the cross, died for our sins, buried and rose again on the third day. हमारे नजात के वास्ते खुदावंद यीशुआ ने क्या किया? अपनी मर्जी के मुताबिक सलीब पर चढ़ा और मौत गवारा की और मुर्दों में से जी उठा और हमें नजात बख्शी। Through His blood we have redemption and forgiveness of sin. खुदावंद यीशुआ के खून से हमें मखलसी हासिल हुई, यानी गुनाहों की मुआफी। The day when our sins are forgiven, और जिस दिन हमारे गुनाहों की मुआफी हो गई, we are sealed by the Holy Spirit of promise. उसी दिन हमारे खुदा के पाक रूह से हम पर मोहर लगी है। So the Holy Spirit, Jesus Christ was speaking before His death, burial and resurrection. Said, I will go and the Comforter will come. Another, he will be with you. तब खुदावंद यीशुआ ने कहा, सलीब पर जाने से पहले ही खुदावंद यीशुआ ने कहा कि मैं तो चले जाऊंगा, लेकिन और एक तसल्ली देने वाला आएगा और आपके साथ रहेगा। He will be the comforter. He will be ever abiding with you. वो आपके लिए तसल्ली देगा आपको और हमेशा आपके साथ रहेगा। I live here and I die for your sins
then I will buried, rise again on the third day. I will go. I will not with you physically forever. मैं यहाँ तो अब हूँ, लेकिन मैं सलीब पर चढ़ूंगा और उसके बाद वफात पाऊंगा और मुझे दफनाएंगे और उसके बाद फिर से मैं जीऊंगा और चले जाऊंगा। हमेशा मैं यहाँ नहीं रहूंगा I आपके साथ। come and accomplish the will of the Father. मेरे खुदावन, मेरे आसमानी बाप ने जो अपनी मर्जी बताई थी उसको यहाँ पे पूरा करने के लिए मैं यहाँ आया। Yeah, to atone the sins of the whole world. तमाम दुनिया के गुनाहों का कफ़ारा देने के लिए मैं यहाँ आया। Yeah, so he came as a savior of the world. इसीलिए खुदावंद यीशु दुनिया के नजात दहिंदा बन He गए। accomplished his work on the cross of Calvary. सलीब पर अपना काम वो मुकम्मल कर दिए। He said, "It's finished." खुदावंद यीशु ने कहा मुकम्मल हुआ। What purpose he has come? He has accomplished on the cross. जिस काम से खुदावंद यीशु इस दुनिया में आए उस काम को वो मुकम्मल किए। Then he said, उसके बाद उन्होंने I कहा go. मैं चले जाता हूँ। Then another comforter will come to you. तो खुदावंद यीशु ने कहा और एक आएगा जो इत्मीनान देगा। Yeah, chapter 16 in the John's Gospel verse 7. यूहन्ना की खुशखबरी 16वां बाब और आयत नंबर 7। Nevertheless, I tell you the truth, it's expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊं तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। Yeah. For if the Comforter will come, it's a promise. The Comforter is going to come. यहाँ मददगार के बारे में खुदावंद यीशु ने वायदा किया है और ये एक वायदा है। Yeah, chapter 14 verse 16. और यूहन्ना की खुशखबरी 14 का 16। Yeah, and I will pray the Father, and he shall give you another Comforter, that he may abide with you forever. और मैं बाप से दरखास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक हमेशा तुम्हारे साथ रहे। Yeah, when our sins are forgiven. जब हमारे गुनाह मिट गए हैं। Yeah, we are sealed by the promise of God. खुदा के रूह का मोहर हम पर लगा है। Yeah, sealed by the Holy Spirit of promise. मतलब वायदा किया गया पाक रूह से हम पर मोहर लगा है। Yeah, Ephesians chapter 1. एफिसियों की किताब बाब नंबर 1 and verse 13. और आयत नंबर 13। In whom ye also trusted after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom ye also believed, you are sealed with the Holy Spirit of promise. और उसी में तुम पर भी जब तुमने कलाम हक को सुना जो तुम्हारी नजात की खुशखबरी है और उस पर ईमान लाए, पाक मऊदा रूह की मुहर लगी। Yeah, so the Holy Spirit was promised by God the Father and the Son, and he is abode in us. So since then he is working in us, he is comforting us in all our lives. तो रूहुल कुद्स जो है खुदा के बेटे ने भेजा और तब से वो हमारे अंदर बस रहा है, उसकी मोहर हम पर लगी है। He is leading us, guiding us and strengthening us. वो हमारे आगे रहकर हमें आगे ले जा रहा है, हमारी रहबरी कर रहा है, हमारा रहनुमा बना है। He is a ever abiding spirit in us. वो हमें अब तक रहने वाला रूह है। Yeah, the day when we obey more and more to the word of God, and we receive more comfort in our lives. दिन ब दिन जैसे ही हम और भी रूह के मातहत बनकर जीते जाएंगे तो वो उसकी मदद हमें और पहुंचती रहेगी। Yeah, so we cannot be comforted by the things of this earth. तो हमें इस दुनिया की चीजें जो हैं इनसे तसल्ली नहीं मिलती। Yeah, we must be comforted by the great comforter, our God. हमारे अजीम तसल्ली देने वाले खुदा से ही हमें तसल्ली मिलती है। Yeah, in 2 Corinthians chapter 1, Apostle Paul he speaks about the great comfort which is given by our God. दूसरे कुरिन्थियों की किताब में पौलुस रसूल लिखते हैं कि हमारे खुदा कितने ही अजीम तसल्ली देते हैं। Yeah, chapter 1 verse 3. दूसरे कुरिन्थियों की किताब बाब नंबर 1 और आयत नंबर 3। Yeah, blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort. हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जो रहमतों का बाप और हर तरह की तसल्ली का खुदा है। Yeah, so God comforts us.
तो खुदा हमें तसल्ली बख्शता है And he gave us the Spirit, the Holy Spirit who dwells in us. He comforts us. और उसने हमें पाक रूह बख्शा है जो हमारे अंदर बसता है। And then the Word of God, which brings great comfort in our lives. और उसके बाद खुदा का रूह जो है बड़ी तसल्ली हमारे अंदर पैदा करता है। Yeah, the psalmist says in Psalm 119 verse 50. हम पढ़ते हैं मज़ामिर की किताब चैप्टर 119 और आयत नंबर 50 में। So we are told in days of my difficulties, His word has comforted me. वहाँ लिखा हुआ है मेरी मुसीबत के दिनों में उसका कलाम मेरी तसल्ली है। Yeah, so we are being troubled by things of this earth and so many problems. But when we read more and more the word of God, it gives comfort to us. तो हम देखते हैं कि इस दुनिया में हमें तरह तरह के मुसीबतें आती हैं हमारे सामने, लेकिन जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं तो हमें तसल्ली मिलती है। Yeah, wonderful God. तो हमारा खुदा कितना ही अजीम है ना। Yeah, see chapter 119 verse 54. चैप्टर 119 वर्स 54 देखेंगे। The statues have been my songs in the house of my pilgrimage. मेरे मुसाफिर खाने में तेरे आईन मेरा गीत रहे हैं। Yeah, so bring comfort because of their comfort, and we have song. उसकी तसल्ली हमारे साथ है और उसकी तसल्ली की वजह से अब हम गाने लगे भी हैं। Yeah, verse 52. और आयत नंबर 52। Yeah, I remembered the judgments of old, O Lord, and have comforted myself. हे हुआ मैं तेरे कदीम अहकाम को याद करता और इत्मीनान पाता रहा हूँ। Yeah, comfort in the fellowship of God's people. खुदा के लोगों के दरमियान इत्मीनान। Yeah, come oftentimes as possible in fellowship with God's people. जितना मुमकिन हो उतना खुदा के लोगों की रिफाकत में इसीलिए जुड़ते रहना है। Yeah, many times we fail to understand this fact and neglect the fellowship of God's people. बहुत सारी बार हम इस हकीकत को भूल जाते हैं और खुदा के लोगों की रिफाकत से अलग हो जाते हैं। Yeah, so we will be comforted in Jerusalem. That is the house of God. तो हमें कहाँ ये तसल्ली मिलती है? यरूशलेम में, मतलब खुदा के घर में। We will be comforted all the time. हमें हमेशा खुदा के घर में ही तसल्ली मिलती है। Yeah, so Isaiah 66. यशायाह की किताब बाब नंबर 66 verse 13. और आयत नंबर 13। As one whom his mother comforted, so will I comfort you, and you shall be comforted in Jerusalem. हम पढ़ते हैं जिस तरह माँ अपने बेटे को दिलासा देती है उसी तरह मैं तुमको दिलासा दूंगा, यरूशलेम ही में तुम तसल्ली पाओगे। Yeah, so if we want to be comforted, we need to have God of heaven in our lives, and we need to have the Holy Spirit to whom we obey through the word. We are comforted. Then through the fellowship of God's people, we are comforted day by day. तो अगर आपकी जिंदगी में आपको तसल्ली चाहिए तो आसमान का खुदा और खुदा के पाक रूह आपके अंदर रहना चाहिए, आपके साथ होना चाहिए, तभी आपको अपनी जिंदगी में हकीकी तसल्ली मिलेगी। Yeah, now you examine your life. अब आपकी जिंदगियां आप जांचें परखें। Yeah, are you comforted or troubled? आपकी जिंदगी में तसल्ली है या घबराहट है? Yeah, many times we invite trouble in ourselves, and we see these things and that thing enter in the world, and there is no comfort in our lives. तो हमारी जिंदगी में हम कभी कभार घबराहट को अपने हाथों से ला लेते हैं, क्योंकि हम दुनिया की चीजों पर नजर डालते हैं और उनको चाहते हैं और घबराहट पैदा होती है, तसल्ली भाग जाती है। Yeah. Thirdly, we are told that we are of one mind. और तीसरी बात यहाँ ये बताई गई है कि हमें एक दिल रहना चाहिए। Yeah, one mind. Singleness of mind is important. एक दिल का मतलब होता है एक ही दिल रखना है सबों को। Yeah, so the early church, we read Acts of Apostles, and we understand they gathered oneness of mind, singleness of mind. पुराने कदीम इक्लेसिया में हम क्या देखते हैं, आप वहाँ पे सब के सब लोग एक ही ख्याल रखते थे, एक ही मर्जी रखते थे, एक दिल होते थे। Yeah, singleness of mind, they gather together and break bread. एक दिल होकर वो सब के सब मिलते थे और रोटी तोड़ते थे। Yeah, what a wonderful thing it is. ये कितना ही अजीम बात है ना। Yeah, say Acts of Apostles chapter 2, आमाल की किताब बाब नंबर 2 verse 6. और आयत नंबर 46. 46। And they continued daily with one accord
in the temple, breaking of bread from house to house, did eat their meat with a singleness, with the gladness and singleness of heart. 2:46 और हर रोज एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे। Yeah, oneness of mind. एक दिल होकर Yeah, what a wonderful thing it is. कितनी अजीम बात है ना। Sadly, we don't have oneness of mind these days. लेकिन गमगीन की बात है, गम की बात यह है कि आज के दिनों में बहुत सारे लोगों के दरमियान एकदिली नहीं होती। Yeah, differences of opinion, different mind. डिफरेंट माइंड, मुख्तलिफ ख्याल और मुख्तलिफ इरादे बन जाते हैं। Yeah, God's people must have oneness of mind. लेकिन खुदा के लोगों के दरमियान उनके बीचों बीच एकदिली की जरूरी है। With the singleness of mind, they break bread. एकदिली से एक दिल होकर वो सब के सब रोटी तोड़ते थे। Yeah, people they take part in the Lord's table, but enmity, oh, terrible things are seen these days. आजकल हम क्या देखते हैं, कहीं कहीं ऐसा भी देखते हैं कि लोग आते हैं रोटी तोड़ते हैं, लेकिन उनके दरमियान ही एक से दूसरे को नहीं बनता है। Yeah, we must have forgiveness. हमें क्या करना चाहिए? मुआफी अदा करना चाहिए। Yeah, we must consider others better than ourselves. खुदा का कलाम कहता है कि हमें दूसरों को हमसे भी इज्जतदार समझना We चाहिए। must have the mind of Christ. He on the cross, in the with very much of suffering, he said, Father, forgive them. They know not what they do. इतना ही नहीं बल्कि खुदावंद यीशुआ का सोच और ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि खुदावंद यीशुआ ने सलीब पर भी उनको मसलूब किए लोगों को भी उनके बारे में भी खुदा से दुआ करके कहा, ऐ मेरे आसमानी बाप, इनको मुआफ कर दे, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। Yeah, so we need to have singleness of mind. इसीलिए हमें एक दिल होना जरूरी है। One day we will meet our Lord in heaven and we will be there. There will not be any difference. एक दिन हम हमारे खुदावंद यीशुआ के साथ आसमान में उनसे शामिल होकर रहेंगे, तब हम सब एक हो जाएंगे। But we have to exercise to overcome these differences. लेकिन उससे पहले इस मुख्तलिफ ख्यालात और अफरा तफरी को हमारे दरमियान नहीं लाना चाहिए, और इस तरीके से हमें प्रैक्टिस भी करना जरूरी है। Three things we have seen. हमने 3 बातें देखी हैं। Yeah, first thing, going towards perfection. पहली बात यह है कि कामिल बनना है। Yeah, our God who is in heaven is perfect. We ought to be perfect. हमारे आसमानी बाप जैसे कामिल है, हमें भी उस तरह कामिल बनना जरूरी है। Yeah, if you are not having any perfection, ask the Lord to forgive. Lord, give me, help me to go towards perfection. अगर हम समझते हैं कि हम कामिल नहीं हैं, तो हमें हमारे आसमानी बाप से दुआ मांगनी है कि ऐ मेरे आसमानी बाप, मुझे कामिल बना दे और कामिल बनने की तरफ मुझे आगे बढ़ा। Yeah, and if you are not comforted, अगर आपके अंदर तसल्ली नहीं है, if you are troubled, there is no peace, joy in you, अगर आपके अंदर इत्मीनान और खुशी नहीं है, अगर आप में घबराहट है, you seek the Lord. खुदावंद के तालिब बने, obey the word, खुदावंद के मातहत रहें, have the fellowship with God's people. खुदा के लोगों के साथ मेल मिलाप रखें, then you will be comforted. तब आपके अंदर तसल्ली पैदा होगी। Yeah, thirdly, तीसरी बात, we must have oneness of mind. एक दिल होना चाहिए। Yeah, that's very important. ये बहुत अहम बात Yeah, है। 1 Corinthians chapter 11 verse 28, let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. पहले कुरिन्थियों की किताब बाब नंबर 11 और आयत नंबर 28, बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए। So let us examine ourselves, then take part the Lord's table worthily. तो हम भी अपने आप को जांचेंगे, परखेंगे और खुदावंद की इस मेज में लायक तरीके से हाथ डालेंगे। Let us spend some time on our knees, examining ourselves, then take part in the Lord's table. हम थोड़े वक्त घुटने टेकेंगे और अपने आप को जांचते परखते अपने आप को जांचेंगे और उसके बाद इस मेज में हाथ डालेंगे।